Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 18. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In previous lecture, we discussed about the where clause and we discussed how where clause is used to restrict the rows. Then we talked about certain search conditions that were being used in where clause and there were different search conditions. We talked about the pattern matching. We talked about the string match using pattern match. We talked about in operator and so on different search conditions that could be used in the where clause. Then we talked about how to sort over query results and how ordered by clause can be used to sort over results. And finally we discussed the aggregate functions and discussed the major aggregate functions like count, minimum, maximum, average and sum. Today we will start from where we left and we will go into the further details of the SQL statements. These are our today's lecture outline. आज के लेक्चर में हम ग्रुपिंग थ्रू ग्रुप बाय क्लास के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम सब क्यूरीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आखिर में फिर हम लोग मल्टी टेबल क्यूरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, let's start with today's lecture. Our first content is grouping results. Aggregate function, as I discussed in my previous lecture, that aggregate functions are used in reports to get some kind of summation or total. Like in reports, you see that what is the total salary of all the employees, how many staff members are there in each branch, and what is the average salary of staff members, who is getting the minimum salary, who is getting the maximum salary and so on. Aggregate functions के बाद अब अगली जो चीज that I would like to discuss, that is grouping the results. Aggregate functions provide the totals at the bottom of a report. However, to obtain subtotals in the reports, we can use group by clause. A query that includes the group by clause is called a grouped query. It groups the data from the select table and produces a single summary row for each group. इस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं और हर ग्रुप के अगेंस्ट आपको आउटपुट में एक ही सिंगल रो प्रोड्यूस होगी. ठीक है, यानी जब भी आप ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे यूजिंग ग्रुप बाय क्लास तो हमारे मल्टीपल ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप का ऊपर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो सिंगल रो में शो हो रहा होगा आपको. लास्ट में ये बताया गया है the columns named in the group by clause are called the grouping columns. और column names को हम लोग group by clause में क्या कहते हैं? grouping columns. Next point is ISO standard requires the select clause and group by clause, they are closely integrated with each other. Second point जो है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ग्रुप बाय के अंदर मतलब हम जो सिलेक्ट यूज कर रहे हैं कोई भी ऐसा कॉलम आएगा जो सिंगल वैल्यू पर ग्रुप होना चाहिए. और सिलेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सिलेक्ट के अंदर हमारे कॉलम नेम्स आ सकते हैं, सिलेक्ट के अंदर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट के अंदर हमारे कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं और सिलेक्ट के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव. हम ऐसी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जिनमें ये तीनों चीजें आ सकते हैं, कॉलम नेम्स प्लस एग्रीगेट फंक्शंस प्लस कॉन्स्टेंट्स. जी, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि जितने भी कॉलम आपने सिलेक्ट के अंदर यूज किए हैं और ग्रुप बाय यूज हुआ है तो ग्रुप बाय के बाद वो कॉलम नेम्स आने चाहिए. उन कॉलम्स या एट्रीब्यूट के नाम के अलावा जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हुए. मींस सिलेक्ट के साथ जो एट्रीब्यूट नेम है विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के वो ग्रुप बाय के बाद वही एट्रीब्यूट नेम लिखा जाएगा.
सेकंड स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ये पॉइंट रिवर्स ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप बाय में आ रहे हैं वो सिलेक्ट के अंदर भी आए। थर्ड पॉइंट के अंदर आप देखें ये बताया जा रहा है, अब आप लोग ये ज़हन में रख लें कि आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट भी लिखी, उसमें वेयर क्लास भी आ गया, फिर ग्रुप बाय भी लगा हुआ है, तो पहले वेयर क्लास के थ्रू वो रोज रिस्ट्रिक्ट होंगी, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसके ऊपर ग्रुप्स अप्लाई होंगे और रिमेनिंग रोज जो आपकी रह गई हैं उसके ऊपर ग्रुप्स बनेंगे। The ISO standard considers two nulls to be equal for purposes of the group by clause. Keep in mind कि अब अगर दो नल्स हैं तो ISO स्टैंडर्ड SQL का जो है उन्हें एक ही ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक हम लोगों ने जो चीज डिस्कस की है, अगर उसमें अभी भी आपको कोई इशू है तो व्हेन वी सी द एग्जांपल्स देन द थिंग्स विल बी प्रीटी क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है वो ये है, फाइंड नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच ब्रांच एंड देयर टोटल सैलरीज। तो सबसे पहले कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए तो सबसे पहले जो मेन चीज है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आप देखें कि पूछा क्या जा रहा है, तो इस एग्जाम्पल में ये पूछा जा रहा है कि हमें हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि ब्रांच में कितने लोग काम करते हैं प्लस उनकी सैलरी का सम क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखें आप, इसमें नंबर ऑफ स्टाफ की बात की गई है, तो यहां हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज काउंट करनी होती है, कोई चीज सम करनी होती है, टोटल फाइंड करना होता है, तो वहां पे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। इसमें हमने हर ब्रांच भी दिखानी है और उनकी सैलरी का टोटल सम भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को, सिलेक्ट, उसके बाद हमने जो एट्रीब्यूट लिया है यहाँ पे ब्रांच नंबर लिया है, उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन काउंट ऑफ स्टाफ नंबर एज माई काउंट और इसको हमने रीनेम कर दिया है माई काउंट से। फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन लिया है सम ऑफ सैलरी एज माई सम और इसको रीनेम कर दिया है माई सम से फ्रॉम स्टाफ टेबल से। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग अलाउ कर दी है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास यूज किया है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम लोग ग्रुप बाय क्लास में हमेशा उसके बाद वो वाला एट्रीब्यूट लेते हैं जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो एट्रीब्यूट जो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे विदाउट एग्रीगेट फंक्शन देखें तो आपका सिर्फ ब्रांच नंबर है, क्योंकि जो स्टाफ नंबर है उसके साथ भी एग्रीगेट फंक्शन आया हुआ है अकाउंट का, और जो आपका सैलरी का एट्रीब्यूट है उसके साथ भी सम का एग्रीगेट फंक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर कर लें कि ग्रुप बाय क्लास के बाद आपने कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, वो वाला एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट में विदाउट एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है एंड दैट इज ब्रांच नंबर। तो यहाँ पे हमने ब्रांच नंबर ले लिया है। नेक्स्ट हमने ऑर्डर बाय लिया है और ऑर्डर बाय में भी हमने कौन सा एट्रीब्यूट ले लिया है, ब्रांच नंबर, और इसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा। मींस यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्डर चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। जी, जब ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो आप लोग देख सकते हैं। हमारे तीन ही एट्रीब्यूट्स थे, ब्रांच नंबर, माई काउंट एंड माई सम। फर्स्ट वन जो है आपका ब्रांच 003 और उसमें उसने काउंट किया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितने थे, 3, और उनकी सैलरी का सम कितना बना है, 54,000। इसी तरह सेकंड ब्रांच आपकी B005 है, उसमें नंबर ऑफ स्टाफ 2 है और उनकी सैलरी का सम है 39,000। लास्ट जो आपकी ब्रांच है B007, उसमें एक ही स्टाफ है और उसकी सैलरी कितनी है, 9,000। जी, इस स्लाइड में आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो स्टाफ नंबर कॉलम नेम है और जो सैलरी कॉलम नेम है वो हमने ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय लिस्ट के साथ यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रुप बाय क्लास के साथ हमेशा वो एट्रीब्यूट नेम आता है जो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एट्रीब्यूट्स एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज हुए थे, इसलिए हमने ग्रुप बाय क्लास में ये यूज नहीं किए। सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड जो आपका ब्रांच नंबर एट्रीब्यूट था वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में विदाउट एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ था,
इसलिए ग्रुप बाय लिस्ट के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट लिया है वो कौन सा लिया है, ब्रांच नंबर, और वो ग्रुप बाय के बाद ब्रांच नंबर को जस्ट अपीयर कर रहा है। जी इस स्लाइड में आप देखें तो कंसेप्चुअली एसक्यूएल परफॉर्म द क्यूरी एज फॉलोज, यानी ग्रुप बाय जो क्लास है उसकी वर्किंग कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है एसक्यूएल क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है, मतलब ब्रांच नंबर के हवाले से अगर हम लोग बात करें कि मसलन B003 की जो रोज हैं उनको इकट्ठा कर देगा, फिर B005 की रोज को इकट्ठा कर देगा, फिर B007 की रो को इकट्ठा कर देगा, मींस लॉजिकली उनको सीक्वेंस में लिख देगा। ठीक है, इसी तरह आपका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है, फिर हर ग्रुप के लिए 3 वाला ग्रुप है, 3 रोज का ग्रुप है। ठीक है, उसके ऊपर कंप्यूट करेगा कि कितने काउंट करेगा कि कितने लोग हैं, उनकी सैलरीज की वैल्यू को सम कर देगा। और आपका जो लास्ट पॉइंट है उसमें यह बताया गया है, और फाइनली रिजल्ट जो आएगा उसमें ऑर्डर बाय क्लास यूज किया था, तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में था, तो जो ब्रांच नंबर जो है वो रिजल्ट में असेंडिंग ऑर्डर में शो होंगी। तो कंसेप्चुअल वे से अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले देखें हमारे ये वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिए थे, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर और सैलरी। ठीक है, तो इन 3 एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया है, ग्रुपिंग किया है। तो फर्स्ट जो ग्रुप बना है वो आपका ब्रांच 003 का बना है, तो उसमें उसने 3 रोज को सिलेक्ट कर लिया है, और इन 3 रोज के अगेंस्ट ये स्टाफ नंबर आए हैं SG37, SG14, SG5, और उसके बाद उनकी सैलरीज आगे शो हो रही है 12,000, 18,000 एंड 24,000। नेक्स्ट जो ग्रुप बना है वो है ब्रांच 005 का, और इसके अंदर 2 टपल्स उसने लिए हैं, 2 स्टाफ्स हैं SL21, SL41, और उनकी सैलरी क्या है 30,000, 9,000। और लास्ट में जो आपकी ब्रांच नंबर है दैट इज B007, और उसके अगेंस्ट एक ही स्टाफ नंबर है और उसकी सैलरी 9,000 है। अब जब आपने एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए हैं ईच ग्रुप के ऊपर, तो देखें हमारा जो फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन था काउंट का, स्टाफ नंबर, तो पहला जो आपका ग्रुप था वो B003 का था, तो उसके अगेंस्ट जब काउंट का फंक्शन उसने यूज किया तो आपके टोटल स्टाफ यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो उसने काउंट करके बता दिए 3, और उनकी सैलरी इन तीनों का सम उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया 54,000। इसी तरह ब्रांच 005 के अगेंस्ट आपके स्टाफ 2 है, तो यहाँ पे काउंट में 2 शो कर दिया, और उनकी सैलरी का सम जब कैलकुलेट किया है दैट इज 39,000। ब्रांच 007 की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ही स्टाफ है, तो काउंट में एक स्टाफ शो हो गया और उसकी सैलरी क्या है 9,000, तो आउटपुट में देखें आपको 9,000 शो करवा रहा है। होप सो अब आपको ये एग्जांपल काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी, क्लियर होगी। अब हम फर्दर भी और एग्जांपल्स को देखेंगे और आपको ये तमाम चीजें प्रिटी क्लियर हो जाएंगी। जी नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव अप्रोच। इसकी एक अल्टरनेट अप्रोच भी है, सिलेक्ट की एक कोर स्टेटमेंट हम सिलेक्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ये क्यूरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इस क्यूरी को आप जरा गौर से देखना होगा कि हम सिलेक्ट के अंदर एक और सब सिलेक्ट लिख रहे हैं। मेजर जो आपका है वो आपका सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसमें फ्रॉम जो है उसमें आपका ब्रांच का टेबल आ रहा है। ठीक, मतलब आप जो एक्चुअल डेटा ले रहे हैं वो ब्रांच के टेबल से ले रहे हैं, लेकिन जो अंदर उसके वैल्यूज आ रही हैं वो स्टाफ के टेबल से आ रही हैं। ठीक है, तो स्टाफ का जो एलियस है हमने उसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ब्रांच का जो एलियस है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब सिर्फ वो वाली रोज लेनी है यहाँ पर हमने जहां पर उन दोनों की ब्रांच इक्वल है, और फिर उन दोनों का हमने काउंट कर लेना है। तो अब हम इस क्यूरी को देखते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट के साथ ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट ले लिया। अब सिलेक्ट के अंदर हमने एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड क्यूरी कहेंगे, सब सिलेक्ट कह सकते हैं। तो अब आप देखें सिलेक्ट के अंदर हमने वही पिछली एग्जांपल को आप देखें वही सेम यहाँ पे लिया हुआ है, काउंट ऑफ स्टाफ नंबर एज माई काउंट फ्रॉम स्टाफ रिलेशन। स्टाफ एस का मतलब है एस यहाँ पे क्या है, एलियस है, वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच नंबर। अब इसका क्या मतलब है कि हमने कंडीशन लगा दी है कि हमें वो वाला स्टाफ चाहिए जो स्टाफ के टेबल में भी उसका ब्रांच नंबर B003 हो और
ब्रांच के टेबल में भी उस स्टाफ का ब्रांच नंबर B003 हो। फिर नेक्स्ट हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दी है और उसमें हमने सम का एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, सम ऑफ सैलरी एज माय सम फ्रॉम स्टाफ S वेयर S डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B डॉट ब्रांच नंबर। तो इस केस में भी क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो ब्रांच नंबर है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पे हमने फ्रॉम, ये आपका आउटर सिलेक्ट जो है, ये आपका आउटर सिलेक्ट का फ्रॉम है ब्रांच बी, और ऑर्डर बाय में हमने क्या कर दिया, ब्रांच नंबर, वही एट्रीब्यूट दे दिया जो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के था। तो यहाँ पे हमने ब्रांच बी और स्टाफ एलियस इसलिए यूज किए हैं ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये जो ब्रांच नंबर है ये स्टाफ के रिलेशन से है और ये जो ब्रांच नंबर है ये ब्रांच के रिलेशन में से आया है। तो इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो रिजल्ट सेम जो हमने पिछली क्यूरी परफॉर्म की थी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें एक दो चीजें ऐड हो जाएंगी। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि कौन सी चीजें ऐड होंगी। उसमें हमारे पास सिर्फ ब्रांच 003, 005 और 007 शो हो रहा था, लेकिन इस क्यूरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इस क्यूरी के अगेंस्ट हमें ब्रांच 002 और ब्रांच 004 वाले जो टपल्स हैं वो भी शो होंगी। इस क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट करके देख लेना है। ड्रीम होम केस स्टडी वाली जो हमारी टेबल्स हैं, रिलेशंस है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप हमेशा उन टेबल्स को अपने सामने रखा करें और जब भी आपने कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है तो उसके अगेंस्ट जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे आप उन टेबल्स के थ्रू उसको वेरीफाई कर लें। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्ट्रिक्टेड ग्रुपिंग्स। अब सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है, हैविंग क्लॉज इज डिजाइंड फॉर यूज विद ग्रुप बाय टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स दैट अपीयर इन रिजल्ट टेबल। यानी अगर हमने ग्रुपिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है तो हमें कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज। सिमिलर टू वेयर बट वेयर फिल्टर्स इंडिविजुअल रोज वेयर एज हैविंग फिल्टर्स ग्रुप्स। अब सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो आपका वेयर क्लास है वो सिर्फ रोज को फिल्टर करता है, लेकिन जो आपका हैविंग क्लास है वो ग्रुप्स को फिल्टर करता है, वो ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहा होता है, और वेयर क्लास सिर्फ रोज के ऊपर काम कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हैविंग के अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं वो ग्रुप बाय के अंदर मस्ट अपीयर होने चाहिए या किसी एग्रीगेट फंक्शन के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, in practice the search condition in the having clause always includes at least one aggregate function। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब हम किसी सर्च कंडीशन की बात करते हैं तो हैविंग क्लॉज के साथ एट लीस्ट एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि वेयर क्लास के अंदर कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, उसके साथ आप कोई एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखें, फॉर ईच ब्रांच विद मोर देन वन मेंबर ऑफ स्टाफ फाइंड नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच ब्रांच एंड सम ऑफ देयर सैलरी। सेम स्टेटमेंट ये वैसी है जो हमने अभी एग्जांपल 5.17 की थी, लेकिन इसमें बस एक चीज ऐड होगी है, दैट इज ब्रांच विद मोर देन वन मेंबर ऑफ स्टाफ। तो आप देखें जो हमने पीछे क्यूरी लिखी थी सेम ये वही क्यूरी आ रही है, जस्ट यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज हैविंग क्लास और एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे काउंट ऑफ स्टाफ नंबर, और हमने कंडीशन क्या लगा दी है, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हैविंग काउंट मींस यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हमें जस्ट वो वाला शो जो स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ऑर्डर बाय में आपने वही एट्रीब्यूट यूज कर लिया है ब्रांच नंबर जो कि सिलेक्ट में विदाउट एग्रीगेट फंक्शन है। तो अब इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो इस केस में जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, लास्ट केस में हम ब्रांच 003 के अगेंस्ट हमें 3 स्टाफ मेंबर्स शो हुए थे, तो आउटपुट में वो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह ब्रांच 005 में 2 आए थे तो वो भी ग्रेटर देन 1 है, वो भी आउटपुट में शो होगा। लेकिन जो हमारा B007 था उसमें माई काउंट हमारा 1 आया था, तो वहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो B005 वाला जो ब्रांच नंबर का स्टाफ है और उसकी सैलरी का जो सम है वो वाली टपल हमारे आउटपुट में शो नहीं होगी। तो आए हम रिजल्ट को देखते हैं।
जी, तो अब आप लोग इस एग्जाम्पल को जब हमने एग्जीक्यूट किया है, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया है। तो इसमें देखें आपके जो B007 वाली टपल थी वो यहाँ पे एक्सक्लूड होगी, उसने इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वहां पे माई काउंट 1 शो हो रहा था और वो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इस केस में आपके पास जस्ट 2 टपल्स शो होंगी, B003 वाली और B005 वाली।